So class, very good morning to all, and I hope you all are fit and fine and doing well in your chemistry, and especially in the fourth chapter, the carbon and its compound. Clear? So in this section, in this chapter, we completed the most of important topic. That means the most important topic is that the introduction part of this carbon, and the second thing is that why the carbon compound is in a very large number in the universe. And the second thing is we have the formation of compound. That means formation compound in this manner. That means you have the Lewis dot structure, and the next thing you have the versatile nature of carbon. Clear? The versatile, yeah, you can say there anomalous behavior of carbon among this periodic table. Clear? And after that you have a new and a very interesting topic is that called the hydrocarbon. Clear? And the topic name is the hydrocarbon, and in the hydrocarbon you see that now we will talk about the single bond, double bond and the triple bond carbon compounds. So comes and start with the hydrocarbon. So you have the hydrocarbon. Now see that what is the meaning of hydrocarbon? You see that in this word hydro and carbon, this signifies, this tell about the meaning. Hydro means the hydrogen, and carbon means we know that the carbon. That means you can say that those compounds having the carbon and hydrogen, those are called hydrocarbon compounds. Okay, that means those compounds which have the hydrogen and the carbon both, so they will call hydrocarbon. Okay. For examples, how you can say that? Suppose you have the molecule CH4. Okay. Suppose you have the Cl2. Suppose you have the O2. Yeah, and suppose you have another compound. Suppose you can say that you have C2H2. कुछ भी ले सकते हैं. Now say that which one is the hydrocarbon? What first of all, the CH4 is the hydrocarbon, obviously, because CH4 contain the carbon and the hydrogen, so it will hydrocarbon. What about Cl2? In Cl2 there is no carbon, there is no hydrogen, so you can say that this is not hydrocarbon. Oxygen नहीं होगा, क्यों? Because आपके पास ना तो कार्बन है ना ही आपके पास हाइड्रोजन. Now what about C2H2? Obviously this contain the carbon and the hydrogen both आपके पास है, तो you can say that this is belong to hydrocarbon family. ठीक है? This is what hydrocarbon, that means hydrocarbons that mean having the carbon and hydrogen both in a compound. A compound is generated by the carbon and hydrogen is called the hydrocarbon. Clear? So after the hydrocarbons you have the types of hydrocarbon. ठीक है? That means how many types of hydrocarbon you have? The mostly you have the two type of hydrocarbons. ठीक है? So two type of hydrocarbons you have. First hydrocarbon you have the two type. The first type you have the saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. And second you have unsaturated hydrocarbon. ठीक है? अब देखिए what is the meaning of the saturated hydrocarbons? Saturated means you have when the compounds, when the carbon compounds having the single bond. ठीक है? That means carbon having single bonds. Yeah, that means when the carbon contain the single bond, it's called the saturated hydrocarbons. And the unsaturated hydrocarbons, that means when the carbon bond contain multiple bonds, that mean double and ट्रिपल. ठीक है? जब भी किसी कार्बन
कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो उस सिंगल बॉन्ड को आप बोलोगे दिस इज फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। वो क्या होगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। एंड वो कार्बन कंपाउंड जहां पे आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उसे आप कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड दिस इज द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, ओनली कंटेन द सिंगल बॉन्ड एंड द अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड क्या होंगे, जहां पे डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपके पास होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेशन का बाद हम लोग बाद में करेंगे क्या होगा। नाउ सी दैट इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यू हैव ओनली वन फैमिली in saturated compounds या हाइड्रोकार्बन्स you have only one family, and this family is called alkanes, ठीक है। दिस फैमिली इज कॉल्ड एल्केन फैमिली, ठीक है। आपके पास नेम आएगा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा उसमें आपके पास देयर इज ओनली वन फैमिली एंड दिस फैमिली इज कॉल्ड द एल्केन फैमिली। सो दिस इज योर एल्केन फैमिली। नाउ सी दैट द सैचुरेटेड मीन्स यू हैव वी नो दैट हैविंग द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, द फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड उस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। एंड सी दैट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर दिस एल्केन फैमिली। सो केमिकल फॉर्मूला यू हैव द CnH2n plus 2, CnH2n plus 2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें सेटिस्फाई करना होगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। सपोज मैं बात करता हूं, मैंने आपको n = 1 दिया, ठीक है। Suppose you have the n = 1, so you can say that now put the value of n here. So कैसे पुट करेंगे, C1 H2 फिर क्या है n आपके पास, तो 1 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C2 H2 + 2 दैट मीन द 4। तो दिस इज योर CH4, this is your CH4 and CH4 means that we all know that you have a easy compound. So class, what is this? This is the simple molecule called CH4 and what is the name of this we'll discuss in nomenclature, ठीक है। वहां पर सीखेंगे हम लोग के नेम कैसे लिखे जाते हैं। Now see that suppose you have n = 2. When you have n = 2 you see that you have the Cn, that means the C2H2n 2 into 2 and the +2 also. You see that the C2 you have H2, that means H4 + 2 H6. So second compound you have in alkane family C2H6. Now suppose you have when you have n = 3, so put the value of n in your chemical formula. So you have C3 H2 into 3 + 2, that means C3 H6 + 2 H8, ठीक है। ये और प्लस हो गया। सपोज यू हैव n = 4, so what will happen, you have the C4 H2 into 4 + 2, that means the C4 H8 + 2 H10. So you have C4 H10, ठीक है। So these are the members of alkane family. And what's the alkane? Alkane are the saturated hydrocarbons which have only the single bonded carbon, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब CH4 का। हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले हमने क्या बोला कि क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा आपके पास। तो दैट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका हो गया केमिकल फॉर्मूला एल्केन। आई एम ड्राइंग द फ्यू स्ट्रक्चर फॉर यू, ठीक है। इन दो का बना लेते हैं, ठीक है। बड़ी फैमिली का नहीं बनाएंगे, वो धीमे धीमे आप लोग खुद ही सीख जाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ सी दैट H4 यानी कि 4 हाइड्रोजन आपके पास हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। नाउ सी दैट ये क्या है,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दैट मीन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज द सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ठीक है, CH4 का नेम क्या होगा हम सीखेंगे आगे जाके। नाउ सी दैट C2H6 दैट मीन यू हैव टू कार्बन है, और कैसे अटैच है आपका सिंगली बॉन्डेड, क्योंकि आपका एल्केन फैमिली में होता क्या है, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपके पास होता है। एंड यू हैव नाउ 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन हम लोग लगा देंगे इसके अगल बगल में बैलेंस पूरी करने के लिए। सो यू हैव द 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ C2H6। दिस इज CH4 एंड दिस इज C2H6। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर। नाउ कम, अगर स्ट्रक्चर हो गया आप लोगों का, तो बात करते हैं आइए नॉमेनक्लेचर में कि नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, या इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, कैसे आया हमारे पास। नाउ सी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द एल्केन। ठीक है, अब है क्या आपके पास एल्केन में, बेटे जो सफिक्स आप लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, ANE। यानी कि आपको लग रहा है ना एल्केन ANE, एल कुछ अलग होगा, ठीक है, और ANE अलग है कुछ, एल्केन। ठीक है, तो सफिक्स का यूज करेंगे, AN यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। सपोज यू हैव द C1 क्या होगा, व्हेन यू हैव ओनली वन कार्बन, when you have only one carbon, so it will call meth, suppose you have the C2 carbon, it's called eth। ठीक है, suppose you have the C3, it's called the prop, C4 is called but। ठीक, fifth it's called but 4, it's called pent, and C6 is called hex। अब इतना ही सीखेंगे। ठीक है, अब हमें अगर एल्केन फैमिली में नेम लिखना होगा, ठीक है, तो जो C1 कार्बन होगा उससे क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आगे भी है स्पीच आपके पास। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा, हम लोग एल्केन फैमिली लिख रहे हैं, तो जहां पर एक कार्बन आपके पास होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैथ। ये तो जनरलाइज हो गया सबके लिए। ठीक है, कि अगर आपके पास केमिस्ट्री में एक कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड होगा तो उसको हमेशा मैथ बोलेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड होगा तो उसमें क्या होगा बेसिकली बेटा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो वो कौन सी फैमिली का मेंबर होगा, एल्केन फैमिली का मेंबर होगा। और एल्केन फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ Cn है, मैंने क्या बोला, आपको क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है। सफिक्स क्या यूज करेंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ANE यहां यूज करेंगे, क्या बन जाएगा, इथेन, प्लस ANE आप यहां यूज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बना, प्रोपेन। अगर ANE यहां यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ब्यूटेन, प्लस ANE यहां यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, पेंटेन, प्लस ANE यहां पे तो क्या बनेगा, हेक्सेन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स के पीछे क्या लगाना है, एन लगा देना। क्या लगा देना है, एन लगा देना। अब एन क्या है, एन क्या होगा, सफिक्स होता है एल्केन फैमिली का, जिसको हम लोग बोलते हैं एन। ठीक है, अब देखिए आपने कहा था अभी, आपने एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लिया था जिसको आपका फॉर्मूला आया था CH4। ठीक है, ये तो आया था जब आपने फॉर्मूला रखा था इससे पहले, जब कहा था CnH2n, जब मैंने कहा था n=1 रखिए, n=1 कहां पर आएगा, C1 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, मैथ, तो फॉर्मूला क्या हुआ, CH4। C2 के लिए क्या फॉर्मूला आया था, C2H6 आया था आपके पास। ठीक है, अब आप जो C3 कार्बन था उसके लिए फॉर्मूला क्या निकाला था, अभी निकाला जस्ट इससे पहले, क्या निकाला आपने, C3H8। 4 पे क्या निकाला, C4H10। ठीक है, बाकी नीचे भी निकाल लीजिए, 5 आपके पास है तो C5H12, 6 है
तो C6H14, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मेंबर्स हो गए जिन्हें बोलते हैं फर्स्ट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला फिट हो रहा है नहीं हो रहा है कैविटी में, ठीक है। बात करते हैं, देखिए C4 एस्टर ले लीजिए, सॉरी C5 एस्टर लीजिए। C5 क्या आएगा, कार्बन C5 इंटू H2, H2 तो अपने आप होगा ही 2, N का कैसे पता चला, ये N आपके पास 5, तो आपने कहा इंटू 5, ठीक है, प्लस टू भी लिख लेते हैं बिकॉज एल्किन फैमिली में +2 होता है, ठीक है। तो देखा आपने C5H10 +2 12, ठीक है, बिल्कुल फिट हो गया फॉर्मूला। सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट दिस C5H12 इज बिलोंग टू एल्किन फैमिली, ठीक है। सो इट इज क्लियर, इट इज कॉल्ड द एल्किन फैमिली एंड द फॉर्मूला इज CnH2n +2 and this one carbon containing compound is called meth, 2 carbon containing compound called eth, this C3 called prop, 4 carbon containing compound called but, 5 carbon containing compound called pent and 6 carbon containing compound called hex, ठीक है। According to the alkane we will use a suffix क्या होगा, जो पीछे लगता है किसी कंपाउंड के, किसी नेम के पीछे लगता है, तो यहां सफिक्स यूज होता है ANE, ठीक है। तो मैथ के पीछे ANE लगाया तो क्या बना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर हाउ टू राइट the chemical formula for the alkane family and how to write the name for the alkane family. So this is all about the first hydrocarbon called the saturated hydrocarbons, and in saturated hydrocarbons you have only one members called alkane family members.